Good morning, everyone. Thanks for joining. We are starting shortly. Thank you. Good morning, everyone. We are starting shortly. Thank you. A very good morning to all the delegates from various enterprises, agri-tech startups, government officials, investors, researchers, college students. Our esteemed moderator, Mr. Vijay Sardana, and respected panelist, Mr. Amit Agrawal from AgriBazaar, Mr. V.R. Rajesh from Cropin, and Dr. Sat Kumar Tomar from Satyukt Analytics. First and foremost, we hope everyone is staying safe and taking good care of yourselves and your families. We thank you all for your support and interest in joining this webinar. I'm Deepti Srivastava, Director of Mindfound Infotech Private Limited, and I'm managing this portal, Focus Agritech. Focus Agritech is India's first digital platform bringing spotlight to the agritech startups in the country and promoting their innovative solutions for agriculture based on platforms like artificial intelligence, machine learning, blockchain, big data, IoT analytics, and so on. The portal features articles, blogs, insights, agri events, leadership talk series, featured interviews, and other information that is useful in corporate, startups, academia, researchers, government officials, and policymakers. We intend to create a meaningful dialogue between all the stakeholders of the agri ecosystem and ensure that there is a free flow of information so that agritech becomes a top performing segment of the country in the future. So here is a quick introductory video about Focus Agritech before proceeding further. Introductory video. We will be coming up with more such videos and promote agritech in India. Now coming to today's webinar. The topic of the session is, can information technology platforms transform agriculture and farmers' income? This webinar is organized by Focus Agritech platform along with our affiliate partners, Lucknow Management Association, ICFAC Club of IIM Lucknow, and Agriculture Today Group. This is a 60 to 70 minutes webinar during which the three panelists will be given 5 to 7 minutes to present about their company products, and this will be followed by a panel discussion and question and answer session for the next 40 to 45 minutes. We are extremely privileged and honored to have Shri Vijay Sardana ji as the moderator of this webinar, and here is a quick introduction about him. Mr. Vijay Sardana is a well-known techno-legal and policy expert,
advocate and arbitrator, agri-food value chain and trade policy expert, and commercial and technical risk management, and regulatory compliance expert. He is also a renowned speaker, writer, author, blogger, independent panelist on TV debates, discussion moderator, conference and event presenter. Mr. Vijay Sardana is an alumni of well-known leading institutes like IIM Ahmedabad, CFTRI, Mysore College of Dairy Science, and Indian Law Institute, New Delhi. His blog, Vijay Sardana Online, is read in more than 150 countries, and he has contributed more than 800 articles related to agriculture, agribusinesses, regulatory, and policy-related issues. He has authored a very popular book titled Guide for HACCP Implementation in Food Industries. I would now request Mr. Sardana ji to take the proceeding ahead. Good morning and thank you to all of you for joining this important discussion. आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हम एग्रीकल्चर को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, भारत का जो कॉम्पिटिटिवनेस है एग्रीकल्चर में, ये सब चुनौतियां हमारे सामने। एक तरफ किसान बाजार ढूंढता है, दूसरी तरफ कंपनियों को अच्छी सप्लाई की जरूरत होती है। कानून बदल रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। इस बदलती दुनिया में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और जैसे हर सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है और दूसरा किसानों की समझ टेक्नोलॉजी के प्रति बढ़ती जा रही है। आज हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, उनके माथुर साहब, अरुण माथुर जी हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा माथुर साहब, अगर आप कुछ शब्द कहें आज के इस चर्चा के लिए। माथुर साहब। माथुर साहब, आप सुन पा रहे हैं? अगर वो म्यूट पे है तो उनसे कहें जरा। विवेक, इफ यू कैन चेक विद हिम। एनीवे, अगर माथुर साहब अवेलेबल नहीं है तो आज हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम एक प्रेजेंटेशन देखेंगे एग्री बाजार की तरफ से। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन देंगे अमित जी, अमित अग्रवाल, जिनका काफी एक्सपीरियंस रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे किसान और बाजार को आमने सामने लाया जाए। हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल सिस्टम होता है एपीएमसी मंडीज का, और हमेशा किसानों की शिकायत ये रहती है कि हमें सही रेट नहीं मिलता, हम कस्टमर को कैसे ढूंढेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। अमित अग्रवाल हमारे साथ हैं। अमित जी का इस लाइन में काफी एक्सपीरियंस रहा है कि फिजिकल ट्रेडिंग में किसान और बायर के बीच में कैसे संबंध स्थापित किए जाएं, किस तरह से किसानों को बाजार से जोड़ा जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इनका काफी एक्सपीरियंस है इस लाइन में। मैं निवेदन करूंगा अमित जी से, अमित जी आप अपनी बात किसानों के सामने रखें कि आपने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है वो किसानों को किस तरह से हेल्प कर सकता है। ओवर टू अमित। थैंक यू सरदाना जी, थैंक यू माथुर साहब, एंड थैंक यू फोकस एग्रीटेक इनवाइटिंग मी हियर। जो आज इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोगों ने क्या इसमें कैसे हम इसको सेक्टर को कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं।
आप देखिए कि पिछले हम कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि किसान को माल उगाने में इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना उसको बेचने में आती है। किसान पूरी मेहनत से माल को, अपने कमोडिटी को उगाता है, पूरी मेहनत करता है, अच्छे सीड डालता है, सारी टेक्नोलॉजी, अगर वो थोड़ा इतना एजुकेटेड भी नहीं है फिर भी वो उसको कन्वेंशनल ट्रेडिशनल इतनी एजुकेशन है कि वो बाहरी किसानों से ज़्यादा उस पर मतलब उसको उस पर गर्व रहता है और अच्छा प्रोडक्शन लेके आता है यहाँ पर। फिर भी मार्केटिंग इंडिया में हमेशा से ही बड़ी वीक रही है, क्योंकि इसके के कई रीज़न रहे हैं अब तक कि जो किसान है वो नियर बाय मंडी में ही माल अपना जाके बेच सकता है, कोई भी बड़ा बायर मंडी से ही जाके खरीद सकता है माल अपना, किसान के पास और कोई चैनल नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडिया में कई मंडियों में कुछ कम बायर होते हैं जिसकी वजह से किसानों को प्राइस सही नहीं मिल पाता है और वो होल्ड भी नहीं कर पाता है। तो हमारी जो एक कंपनी एग्री बाजार है, इससे पहले भी मैं 2 कंपनियां हमारी और हैं। एक है स्टार एग्री जो हम लोगों ने 2008 में स्थापित करी थी, जिसका काम है किसानों को वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करना। उसके थ्रू हम लोगों ने करीब 1000 से ऊपर वेयर हाउस स्थापित करे अक्रॉस इंडिया। उसके बाद हमने एक एनबीएफसी खोला, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको हमने एम बनाया कि हम किसानों को लोन प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों कंपनियां जब ये अच्छा कर रही थी तो हमने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये रिकग्नाइज करी, जो मैंने अभी आपको बताया, मार्केट लिंकेज की, कि मार्केट लिंकेज कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोगों ने ये एक मॉडल निकाला कि अगर किसान को हम एक ये बताएं कि आप ऑनलाइन अपना प्राइस देखिए, नियर बाय कौन आपके बायर हैं जो आपको बेस्ट प्राइस आपको दे सकते हैं कमोडिटी का, उनका आप अपने मोबाइल पे रेट चेक करिए, अगर वो अच्छा प्राइस दे रहे हैं, और फिर आप मंडी में अपना प्राइस चेक करिए फ़ोन के द्वारा या अपने व्यक्तिगत जो आपके संपर्क हैं जिन इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, जो आपको प्राइस बेटर दे रहा है आप उसको माल बेचिए। अगर आपको प्राइस फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमारे वेयर हाउसेज में माल को जमा कीजिए और वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंस लीजिए 7% पर। ये होल कॉन्सेप्ट था करके, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़े। तो ये लगभग एग्री बाजार जो प्लेटफॉर्म है, ये हम 3 साल से हम इसको कर रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा इसमें सभी जगह से रेस्पॉन्स मिल रहा है। स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के फार्मर्स हमसे जुड़े हैं और वो डायरेक्ट अपना माल इसमें बेच पा रहे हैं। इसके अलावा 17,000 बायर्स हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, क्योंकि बायर्स ने ये रिकग्नाइज करा कि अगर वो डायरेक्ट फार्मर से माल लेते हैं तो उनको बैंक भी कम ब्याज पर पैसा देता है उनको वर्किंग कैपिटल के लिए, क्योंकि उनके प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। किसानों को उनका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। किसानों को वो एजुकेशन कर सकते हैं कि आपको किस तरह का माल उगाना है, किस तरह का प्राइस वो बेटर दे सकते हैं। तो इस तरह से बायर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े और उनको बहुत सारा इसमें बेनिफिट नजर आया। अभी जो नई जो एक डिमांड हमारे पास आ रही है सभी बायर्स के साथ में, जो प्रोसेसर्स हैं, कि उन्हें ट्रेसेबिलिटी डेटा चाहिए कि किसान का जो क्रॉप हिस्ट्री है वो कैसे उनके पास आए, जिससे कि वो उसको और बेटर तरीके से प्राइस दे पाए। तो इसके लिए हम अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये खाली बाइंग सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं बन के ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और प्लस आप ये देखिए कि क्रॉप हिस्ट्री में यील्ड एस्टिमेशन थ्रू सैटेलाइट इमेजेस हम कैसे उसका यील्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्या क्रॉप में क्या बीमारी हो सकती है, क्या उसके अंदर उसका समाधान कैसे निकल सकता है, उसका पूरा कंप्लीट हम किसान को दे रहे हैं। और उसके माध्यम से जो वो डेटा पूरा आता है उसके माध्यम से हम जो है उसको बायर्स को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इसमें एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करा है पेमेंट्स का। वी हैव डेवलप अ वॉलेट कॉल्ड एग्री पे। इसके अंदर क्या होता है, कई बार किसान ये सोचता है कि मैं अपना बायर को माल देता हूँ तो वो मेरे को पेमेंट देगा कि नहीं देगा, या 3 दिन लेट देगा, 4 दिन लेट देगा, तो उसके अंदर मैं कैसे उसको करूँ। दूसरी तरफ बायर का ये मानना रहता है कि अगर मैं एडवांस पैसा दे देता हूँ, एडवांस उसको किसी को भी सप्लायर को या फार्मर को देता हूँ, तो वो माल सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। एक ये ट्रस्ट डेफिसिट होता है इसमें। तो व्हाट वी हैव डन लाइक इज वी डेवलप अ पेमेंट प्लेटफॉर्म। इट इज लाइक एनी बायर कैन डिपॉजिट देयर मनी एंड whenever they get supply, so automatically supplier को उस वॉलेट के थ्रू पैसा मिल जाता है। जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है कि मैंने अपना माल रिसीव कर लिया है, आई एम सेटिस्फाइड, एंड देन द वॉलेट रिलीज द फंड्स टू फार्मर्स। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था सेक्टर का, वो हम इसमें खत्म कर चुके हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक क्वालिटी, हम लोगों ने हमारी भी काफ़ी क्वालिटी लेबोरेटरीज, एग्री लेबोरेटरीज लगाई हैं, और प्लस जो थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज होती है उनके साथ हमने टाइप करा है।
कोई भी बायर, जैसे कुछ बायर्स होते हैं जो सिर्फ हाई क्वालिटी का मटेरियल खरीदते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, उसके लिए वो कुछ भी अच्छा प्राइस देने को तैयार है, पर उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो वो हम लोगों ने उसको थोड़ा डिजिटल करा है, और हर ट्रेड से पहले हम चाहते हैं हम क्वालिटी सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं बायर को, जिससे कि फार्मर को बेस्ट प्राइस मिले। देखिए मंडियों में क्या होता है, कई बार जब ऑक्शन, फिजिकल ऑक्शन होता है तो इतना फास्ट होता है कि 1 घंटे में पूरा ऑक्शन हो जाता है। तो एक कोई फार्मर यदि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेके आ रहा है तो उसको उतना अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है उसको, मतलब जो, और उसके कंपेयर में जो दूसरा फार्मर है थोड़ा हल्की क्वालिटी का मटेरियल लेके आ रहा है तो दोनों को ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलता है ऑक्शन में। तो फार्मर को कोई इंसेंटिव नहीं होता प्रीमियम क्वालिटी क्रॉप्स उगाने का। तो ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है, और कमोडिटी में हमेशा सेटलमेंट क्वालिटी से ही होता है। तो हम लोगों ने वो को थोड़ा सा रिजॉल्व करने का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करी है। थर्ड, जो हम ये इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी बायर्स आ गए, उनको काफ़ी बेनिफिट है, और फार्मर्स भी काफ़ी आते जा रहे हैं। पर इसमें जो अभी सबसे बड़ा हमें जो चैलेंज नज़र आता है कि अभी इसके अंदर जैसे बायर रिक्वायर्स ह्यूज क्वांटिटी एवरी डे टू रन देयर प्लांट्स, but we don't get proper supply. If all farmers use our platform, they see price consistent supply, अगर वो दें, क्वालिटी मटेरियल दें, तो उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसके अंदर मिल सकता है इसके अंदर। तो आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंड करता हूँ हमारे इसके डिस्कशन को, और सदानंद जी से पूछता हूँ और ऑडियंस से अगर कोई रियली क्वेश्चन है तो आप, मैं आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। अमित, थैंक यू वेरी मच। मेरा ऑडियंस से निवेदन है कि जो भी आपके सवाल हैं आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसको मॉनिटर करेंगे और आपके सवालों को जब डिस्कशन शुरू होगा तब हम लेंगे। एक दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट अमित ने बोली हैं वो आप लोगों को समझनी चाहिए, जो भी ऑडियंस हैं, खासकर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि क्वालिटी को लेकर, कि देखिए बाजार क्वालिटी की पेमेंट करता है। एफसीआई में फेयर एवरेज क्वालिटी चल जाती है, लेकिन मार्केट में जो बायर है उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर एक्सपोर्टर है तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी चाहिए होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों बायर इनके प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ स्पेसिफिक क्वालिटी मिलेगी, और अगर किसान भाई अच्छी क्वालिटी पैदा कर रहे हैं तो आप इस तरह के जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनके साथ जुड़ें, तो आपको पता लगेगा कि बाजार में जो क्वालिटी है उसका क्या प्रीमियम मिलता है। पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है इस पूरे प्रोसेस में कि बायर आज की तारीख में कानूनों में भी लिखा हुआ है कि हमको ट्रेसेबिलिटी चाहिए, कौन सा किसान है, कहां से माल बेच रहा है, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये ट्रेसेबिलिटी आजकल लीगल रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये जब लीगल, एक बार आप ये स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो मेरा ऑर्गेनाइजर से निवेदन है कि स्क्रीन हटा दें। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेसेबिलिटी को लेकर। ये आज लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज की तारीख में जो बायर है वो जानना चाहता है कि ये प्रोडक्शन कहाँ हुआ, किस क्वालिटी का हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बहुत सारे इसके फायदे हैं, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अगला प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सामने एक और इसी तरह से जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, चाहे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं, पेमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें। अभी क्या होता है कि हम लोग एक आधे एरिया में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों से बात करने की, उससे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अब कंपनियों ने कोशिश ये करी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो इस संदर्भ में जो अगला प्रेजेंटेशन है, जो हमारे ऑडियंस को इस बात को ध्यान रखें कि किस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और सर्विस प्रोवाइडर एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, ये हम अगले प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ताकि आने वाले भविष्य में किसानों की क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से वो अपने डिसीजन बना सकते हैं, इनपुट से लेकर आउटपुट तक पूरे रास्ते, वेदर को कैसे मैनेज करना है, डिजीज को कैसे करना है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल है कि हम किसान की आमदनी कैसे बढ़ाएं, और जो
जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको कैसे कम करें। तो अगले प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ क्रॉपइन से राजेश जी को। राजेश जी का काफी एक्सपीरियंस रहा है किसानों के साथ डील करने में, पॉलिसी मेकर्स के साथ डील करने में, बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया है, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनियां हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हों, और कई देशों में काम कर रहे हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन करीब 40 देशों में काम कर रही है और करीब 1.5 करोड़ हेक्टेयर एकड़ के आसपास जो फार्म लैंड है ये उनको सर्विसेज दे रहे हैं। अब राजेश जी से सुनते हैं कि क्रॉप इन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसानों को क्या फायदा मिला, और भारत का किसान और व्यापारी कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स की इनकम को सुधारने के लिए। राजेश जी, आपका स्वागत है। Thank you, Sardana ji, and very good morning to all the panelists and the attendees who are there today. This is a great opportunity and the right time, as Sardana ji rightly mentioned, the time where because of the COVID challenges which is across there, it is very important also to understand how technology is playing a vital role in the entire value chain. I think most of the things with Amit has introductorily, already mentioned in the about the challenges what are there and what are the opportunities in agriculture. We are a company which are 10-year-old in the system, and we are working with different customers that are agri input companies, banks, financial institutions, insurance companies, or our major focus is to empower the agri businesses to become more data driven using platform, then move from a conventional way of farming to more scientific way of farming, thereby improving the efficiency, productivity and sustainability across the value chain. Also, as rightly mentioned by one of my co-panelists, is that the traceability is not something good to have, it is must to have now, because post-COVID, the consumer preferences are changing now. They demand from where the food has come, how sustainable the food is, if it is organic, what is the way to assess that this data is right or not. So with this, basically what we see is that this is basically a multiple disruption drivers are pushing the businesses to move from the paper-based or MS Excel or gut-based farming approach to more to a platform data-driven approach. Recently, जो pandemic हुआ last year, इसी समय जब lockdown हुआ था, movement from a farm to market and market to farm, or business reaching to the farmers or government reaching to the farmer was very difficult. And this is not only to the farmers, but also to all the other stakeholders in the agriculture. जो farm equipment manufacturers हैं, बैंक है या insurance company है, NGOs हैं जो farmers साथ काम कर रहे हैं. और ये हमें समझ में आया कि the most important thing in agriculture is where we could take the first step is the digitizing the entire value chain, connecting all the stakeholders on a platform where any disruption like the recent pandemic, tomorrow if something else comes in, there is no disruption in the barrier among the farmers and the business community or the service providers to the farmers. Now, if you see from an Indian point of view, the agri challenges, if we have to put it in 5 major buckets, one is the lack of access to information, where we talk about moving from a conventional farming to more scientific farming. The second is the lack of access to financial services. One of the reports says that only 40% of the small marginal farmers are connected to the formal financial system. They are still connected to the private lenders, and we all know how the private lenders are exploiting these small farmers. The second is the lack of access to quality inputs and machines. Now, if you see here, the spurious seeds and fertilizers reaching to the small farmers, अगर बीज ही खराब है तो फसल तो खराब होनी है. So that is something very important that कि farmer के पास में, especially the small marginal farmers जो जिनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन पे वो काम कर रहे हैं, उनको सही सीड सही टाइम पे या सही फर्टिलाइजर सही टाइम पे मिले और सही दाम पे मिले. The other thing is also about mechanization. Now, अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि mechanization में पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा progress हुआ है, but still I think that we are very behind to the other market. Like USA, we have got 95% mechanization, Brazil 75% mechanization, China 57% mechanization, और हम करीबन 40-45% पे हैं. So that is something also, and one challenge what we've seen when we talk to a farmer is that nobody, all small marginal farmers cannot buy it. So there has to be something where they can get into like a Uber model where they can get these tractors, thresholders or harvesters on the harvest time on a rental basis.
And last but not least, I think my colleague Amit rightly mentioned, connecting, though they can grow everything, that's not major challenge, but getting the right market is very important. And apart from the market, the post-harvest losses, I think, is quite a high in India. One of the reports in 2019 came out, which says approximately 92,651 crore per year post-harvest losses is happening because the poor storages and transport facilities are not there with the farmers on time. So looking at these challenges, what we thought is that one thing which we have to come out is that we need to come to a one-stop delivery platform for a farmer, where not only we digitize the farmer, we have that database where we know what is happening, but also getting that data to the respective for example, AgriBazaar or some other companies who are buying from farmers. They need this information in a real-time basis that next 3 months to 6 month time, what, where, how much is going to come to from there. So it becomes very easy. So well before the harvest, if we can connect those businesses to the farmer gets the right prices, and the businesses without any losses can get the right product from them. And also, the government plays a very important role from a policy and a scheme point of view. Having this data, they can come out with a lot of policies which are very subjective and customized to those businesses altogether. Now, coming from a end-to-end farm management point of view, right now, many states, many governments have started the digitization process, but everything is happening on silos. I think one of the forums when we were discussing, most of the leading 6 or 7 states have digitized their farmers, but they don't speak to each other. Now, we have to have a universal platform where we could use and leverage this data, where agri-techs, governments, and other institutions can come together, use this data for the betterment of the farmers and getting the right package of practices or giving advisories. Agriculture universities can come forward by giving best practices on the pest and disease management, especially on the organic part, which I think Sardaranji rightly mentioned. The organic is a very critical, where 3 years the farmer invests, and then if he's not able to get certification, everything goes for a toss. And that's the reason why a lot of farmers are not moving to organic. So that support has to be given to the farmers in terms of training and other things. Now, as I mentioned about the cropping patterns changing, the farmer behavior changing, it is very important that there has to be certain monitoring. We use satellite-based data where we could look at how basically the small marginal farmers structured across the different crop season are growing, are they moving from one crop to others? And this data becomes very helpful for the companies who are getting into procurement with the farmers. So the close monitoring becomes very good, and it comes at an aggregated level, basically. I talked about the financial services. Now, the banks and financial institutions initially were lending to the 20% large farmers, but the 80% of the small marginal farmers which were out of this financial system were, because there were not much of data there. What we're trying to do is that using the platform, one, we could bring that farmer data sourcing on the platform. Second, once the data comes in, it's very important that to know what basically this farmer has been growing. Then we also came out with the post-dispersal support. So basically what we come out with a farmer level or plot level crop agri-worthiness report, where giving the land of the farmer, we could know how much land the agriculture land is, how much is the fallow land, and last 3 seasons, what has the crops grown, and what was the ratio of the crop, or what was the yield estimation of that crop. So this becomes very helpful for the bank. So bank can now lend faster, easier, and it could scale to the different geographies more easier. And the end user, the small marginal farmer who has a less than 2 acres of land, can get this benefit and get the loan in right time. Also, monitoring that plot from a bank point of view is very important, that if he has given a loan to some farmer, is he growing well or not? Is there any pest and disease? He can connect with the farmers, and based on the harvest dates, expected harvest date, they can look for the collections and as well on that part. Now, this is my very important part where we talk about traceability. Now, traceability in 2 terms. One, the term is that from a genuinity point of view, is this produce genuine or not genuine? That's very important. But from a second point of view, it is very important that when you scan the product and if your food product, or that could be fruit or vegetable or anything, you should know the entire details. We have been working with multiple states and the private sector, where it is now the customer are asking the companies to bring this traceability, where I could know from where it has come, what were the different practices it was adhered, was there any pest and disease over there, or post-harvest, what are different activities was created on that. This has become, one is a trust factor, and also from a brand point of view, how transparent you are.
Recently, with the honey in December 2020, CSE has come with report 16 of the 22 top brand were found adulterated in the report which came out. So it is very important, and then we have to bring that traceability, and this is must to have us. I entirely agree with the moderators of what he mentioned. The second thing about the farmer, obviously farmer is in center. We have to educate the farmer, promote and establish a direct connect with the grower, where we tell them what are the different practices to adhere, what are the best practices across the globe, and which could help the farmers to one, increase the productivity and reduce the losses which are there. Now, we have been working in different value chain. We talked about digitization, we talk about advisory, we talk about access to input, we talk about access to finance, we talk about access to market. And if you see here, with the normal digitization and advisory, with the engagement with the farmer, we have seen that the improvement in the productivity is approximately 32%. But if you provide the right input at right time with the OEMs, we're able to see that the cost has reduced up to 10%, what they were buying from the local market. From a direct engagement with the institutional buyers, there is a higher price which they can realize about 8 to 10%. So to summarize, basically, if you see here, we are looking at the 360 approach with one single platform where one farmer can access all the services, all the requirement of his life using the one single platform, not into juggling to others part. So I would like to end my part where Cropin is working on maximizing the per acre value, which is very important at this time of hour to increase the value for the farmers. Thank you, Mr. Moderator, for giving the opportunity, and Focus Agritech. Look forward. थैंक यू राजेश, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। जितने किसान भाई और जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं। जैसे आज बैंकिंग सिस्टम में आप और हम सब लोग बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं। चाहे आज आपको अपने बैंक में सैलरी अकाउंट है, अब आपको वहां से किसी को ट्रांसफर करना है, आज आपके पास पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप बगैर बैंक जाए काम कर सकते हैं। आपको किसी को पेमेंट करना है, किसी से पेमेंट लेना है, आप डिजिटली लेते हैं। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप वो कर सकते हैं। आपको एफडी करना है, आप वहां कर सकते हैं। बच्चे को पेमेंट भेजना है हिंदुस्तान में या विदेश, आप डिजिटली कर सकते हैं। ये सारा काम आप कर सकते हैं घर बैठे। आपको बिजनेस पार्टनर को देना है, आप घर बैठे उसी प्लेटफॉर्म से, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको यूनिवर्सल सर्विस मिल जाती है। आज की तारीख में उसका बेनिफिट देखिए, देश का टैक्स बढ़ गया। आपके जो पहले खर्चे होते थे, एक आदमी जाता था बैंक में एफडी बनवाने, डीडी बनवाने, फिर वहां से वो कुरियर किया जाता था, फिर किसी और के पास जाता था, फिर उसके पूछा जाता था अकाउंटेंट से कि भाई साहब वो आया या नहीं आया पेमेंट, फिर उसकी रसीदें बनती थी। आप खुद अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से कितना फायदा उठा रहे हैं आपके सामने। आप अपना बैंकिंग सिस्टम और घर में आप पैसा किस तरह से मैनेज करते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। अब यही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर के लिए अगर हम कस्टमाइज कर दें, किसान को बीज चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन वहां मिल जाए, कौन सा कीड़ा लग गया उसका इलाज क्या वो ऑनलाइन मिल जाए, कौन सी दवाई कहाँ मिलेगी मिल जाए, दवाई सही है या खराब है वो पता लग जाए, उसके साथ आपका बाजार का रेट क्या चल रहा है, मौसम की जानकारी क्या है, पेमेंट कहाँ से आएगा, वेयर हाउस कहाँ है, ट्रैक्टर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेबर चाहिए, सरकार की पॉलिसी क्या है, दुनिया का भाव क्या चल रहा है, बेरी मंडी में क्या है, देश में क्या चल रहा है, फ्यूचर मार्केट्स में क्या चल रहा है। अगर सारी जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, तो जो बार बार हम ये कहते हैं ना कि किसान गरीब है, छोटा किसान है, कहाँ कहाँ जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज का फायदा ये है कि किसान सब कुछ अपने मोबाइल पे कर सकता है, जैसे आज हम फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं। ओनली चैलेंज इज कि हमें टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। एक टेक्नोलॉजी फियर भी होता है, अरे यार हम कैसे करेंगे, अरे यार ये तो इतना हाईटेक है, कंप्यूटर है, हम तो गरीब हैं, हम तो अनपढ़ हैं। ऐसा कुछ नहीं। जितनी टेक्नोलॉजीज आज आपको इंटरनेट पे दिखती हैं, वो आप उसको दुनिया भर की करीब 120 भाषाओं में बगैर खर्चा किए खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप गुजराती हैं, पंजाबी हैं, हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से हैं, केरल से हैं, एक क्लिक ऑफ बटन से अंग्रेजी को आप तमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक क्लिक ऑफ बटन से अंग्रेजी को आप हिंदी में बदल सकते हैं। ये सारी पावर आज टेक्नोलॉजी देता है। ये प्रेजेंटेशंस और फोरम का आज का चर्चा का विषय बेसिकली ये है कि आप लोगों को ये बताना कि एग्रीकल्चर जिसको हम रूरल बैकवर्ड सेक्टर मानते हैं, उसमें कितनी तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ गई और कैसे हम उसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे किसानों के खर्चे कम हो सकते हैं।
जब खर्चे कम होंगे तो ऑब्वियसली आमदनी बढ़ेगी। आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं और उसमें 2,000 का आपने खर्चा कर दिया कि बैंक जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो सारा काम आप घर बैठ के कर सकते हैं, तो 2,000 रुपए तो बचे। तो इनकम अगर उतनी रही, खर्चे कम हो गए, तब भी तो परिवार की आमदनी बढ़ी। कॉमन सेंस अप्रोच है। इसीलिए पूरी दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। अब हम आते हैं अगले प्रेजेंटेशन को लेकर। एक और टेक्नोलॉजी, वो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आपको ये पता नहीं है कि कल सूखा पड़ेगा, बारिश आएगी, मैं आज इरिगेशन करूं नहीं करूं, मेरे यहाँ वातावरण कैसा है, मुझे क्या करना है। अब मेरे खेत से तो मुझे नहीं दिख सकता, मैं तो वहीं तक देख सकता हूं जहां तक मेरी नजर जाती। लेकिन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से आप अपने मोबाइल पे बैठ के आप अपना पूरा जिला, अपना पूरा राज्य, अपना पूरा देश, पूरा दुनिया का वेदर, जो आपकी इच्छा है, जैसा है, आप उसको देख सकते हैं। उसी का एक डेविएशन आता है जिसको हम बोलते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो नैरो एरिया में है। इसको हमें समझना पड़ेगा। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करें? अभी हमने दो चीजें देखी, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवेज, बाकी टेक्नोलॉजीज। एक और टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है उस पूरे प्रोसेस के लिए। हमारे पास सत कुमार जी हैं। इनका पूरा एक्सपीरियंस ही रहा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, स्टेट्स के लिए, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर। क्योंकि सैटेलाइट को कैसे रीड करना, इट इज लाइक ए एक्सरे। जब आप एक्सरे करा के जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको देखता है कि आपको टीबी है या नहीं है। हमारे लिए तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है वो, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बता पाते हैं कि आपके इस एक्सरे का मतलब क्या है। इसी तरह से सैटेलाइट का जो कैमरा है वो ऊपर से इमेज ले रहा है, उसको रीड करके उसकी मीनिंगफुल जानकारी कैसे निकाली जाती है और उससे कैसे फायदा होता है। मैं निवेदन करूंगा सत कुमार जी से कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से क्रॉप मॉनिटरिंग में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को हम यूज करके किसानों का फायदा कर सकते हैं। सत कुमार जी। थैंक यू सर दाना जी, एंड थैंक यू दी Focus Agritech team for giving us the opportunity to present our work. And thanks a lot Amit and my previous presenter Rajesh ji for giving a very good overview of like what is happening in agriculture and then how different companies are innovating. So I think this slide they have covered in very vast details. I would like to just mention a few things here. If we see in India, a large number of farmers are small and marginal. So one of the challenge we face in technology is like others are also mentioned. This technology has to be affordable to this section of farmer so that a large number of farmers can adopt. And it has to be very simple and easy to use. So our whole effort, so we are now about 3-year-old company, has been how do we make it simple to use and how we make it affordable for farmers to use. Like many of these applications, like when we talk about satellite, essentially we are talking about some instrument on the satellite from which we are observing the things. Same kind of things you can achieve, like you might have heard things like IoT sensors, or you can put some other sensors in your farm. You can observe those things in your farm and you get the information. But if you see the cost of IoT sensor, depending upon the configuration and what kind of instrument you want to use, it may vary from, let's say, 10,000 to maybe about 1 lakh per acre per year. And there are different kind of models, etc. But the cost is huge. Not many farmers can afford this cost. Maybe corporate farmers can afford, and there may be some other progressive farmer. So our whole idea of starting this company was, how do we use the satellite data and get the same kind of information which we get from IoT sensor, and then provide the service to a farmer in affordable way. So the cost from the satellite data after all this processing and field work, etc., is just few fraction of a normal IoT sensor which typically we use. Now, the another question you may ask is like, when satellite is so much affordable, why it's not widely being used by the farmer? I'm sure there are not even 1% of the farmer who are currently directly or indirectly using the satellite data. One of the challenges, like Sadhana was mentioning, how do we read the X-ray? So we need expertise. How do we read
the data coming in different band and then convert into a way which farmers can directly use. The other challenges, I'll not go into too technical detail, but there are basically two part of this kind of sensors we use. One we say optical sensor, which is very similar to like a normal camera we have and some infrared and thermal bands. So if you see in middle of my presentation, you can see the average cloud cover we have in India in different months. As you can see in the monsoon month or Kharif season, like in June, July, till about September, and in South India in the October month also, we see a lot of clouds. So about 80% clouds or 90% clouds. So at that time, this optical satellite cannot provide the data. So a lot you hear about like NDVI, etc. So those kind of data are not available. If we use the microwave, which are the other kind of satellite, there the wavelengths are a little larger. It's like how our mobile communicates, how our radio communicates, and they are not interrupted by the weather conditions. If we use microwave satellites, we can get information in all weather conditions. Just to give you one simple example, there was Fani cyclone in Bay of Bengal. So you can see these two pictures are on the same date during Fani cyclone in Bay of Bengal. And you can see in optical, we can see only the cloud. So you can see only top of the cloud. You don't see anything on the ground, what is happening. So this is the kind of situation we face in our monsoon or the Kharif season. During the same period, if you see the microwave satellite data, you can see all the land features nicely. On the same date, you can see eye of the storms, you can see many things. So when we use this data, we can provide data more regularly and we can add more value. And it's not only about seeing Earth in all weather conditions. Being different wavelength, you can capture much more variables and you can supplement your information that is coming from optical and thermal satellite data. So by using all the satellite data, we estimate various variables. Just to give you one example, I have presented the soil moisture here. So this soil moisture is coming only purely based on the satellite data. There are no field sensors. We do use field sensor, but just to validate our product. So we have lots of testing center in India and outside India. So whatever information we estimate from satellite, we validate it to verify that what we are giving it to farmer, it has to be accurate information. Then only farmer will use it and then rely on it. So you can see soil moisture in 20 meter by 20 pixel. We can get some information we can get in 10 meter by 10 meter. And then you can get this information from a farm scale to any national scale or the largest scale you can choose. Now, to make it available to the farmers, we have developed this mobile app, which is available in Android Play Store. It's free to use. So you can just walk around your farm and your farm get geotagged in our application. And then we start getting all the satellite data, all the weather data. And then we can tell farmer about the farm. We use weather forecast data. So like what could be the weather in next 5 days? How is the health of the crop? It's having good health, bad health. If there are chances of any pest coming, any disease coming, if pest and disease might come, what is the best solutions you can use? What is the organic solution? What is the some pesticide or fungicide you can apply it? And what could be the yield? So whole this lot of information we can provide it to the farmer, including like how much to irrigate, when to irrigate, so that you can use optimal water. Because a large part of India is having droughts when we talk about like a surface in terms of surface water, but there's something called groundwater drought also. When you use groundwater much more than the what we are recharging to the groundwater, it starts table starts falling, and then it's require more energy and difficult to pump, especially in hard rock aquifers like in South India. So you cannot irrigate so easily. So if we use water optimally, we can maintain our resources and then we can use the resources for long term. So a whole lot of things we can use. So by through this application, here are some screenshot like typically for pest disease information, how to get the weather data, and you can see other satellite data also in our application. So just to tell you like one example, we talk a lot about the crop advisory, pest advisory. So what I have seen, like I went to see one farm in UP, and farmer comes to a pesticide soap and they will say my crop is not doing well. Now farmer or many farmer does not know what kind of pest and disease it might be. They know that health is not good. Now they come to this soap, and what typically this pesticide soap owner they will do, they try to provide different kind of solutions.
So you provide one fungicide, you provide one pesticide, you give some a growth booster. So if farmer was supposed to spend only, let's say 50 rupees, now they need to spend 200 rupees because they are giving whole lot of solutions which may not be required. Now farmer will go and apply it in their farm. Now, because you are giving too many chemicals, there are good chance that it can work, but still there are chances that it may not work. Maybe the solutions you provided was not sufficient to solve your problem. So by using the technology, our effort is how do we provide the exact solutions which should work for the farmer. Thank you. Thank you so much, Mr. Sat Tomar. I think it was useful. May I request now all the panelists to switch on their camera, and now we should have a discussion session. Because based on your presentation, there are very interesting questions which are with me now. And I will prefer that if you can give answer in a very straight, with example, and in a very, very brief, so that we can accommodate more and more questions. So that is important. तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है कि देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बता दिया, और अभी भी एज ए किसान अगर मैं देखूं तो मेरे को भी लगता है कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, इसको कैसे, मेरे किस काम की है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा लगेगा, ये मेरे दिमाग में सवाल। तो मैं एक एक करके आपसे बेसिक सवाल ये पूछूंगा कि अमित, राजेश एंड मिस्टर सत कुमार, कि ये जो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी बताई है, एक छोटा किसान, इस देश का किसान तो गरीब है, एवरेज किसान, कितना खर्चा करना पड़ेगा और कितना मुश्किल है उसके लिए सब अडॉप्ट करना। टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं छोटा किसान हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट ना तो आईटी प्रोडक्ट में करने को है, ना मेरा लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा है, मैं एक रिमोट गांव में बैठा हूं, कैसे मैं फायदा उठाऊं, कितना खर्चा लगेगा, मुझे क्या करना होगा? Briefly, if all of you, three of you, can in 1 minute each can briefly address that. Amit, starting with you. सर, हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी का नाम आता है, वर्ड आता है, तो हमेशा लगता है कि क्या बहुत बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होगा या कुछ होगा। पर आज जैसे जहाँ पर इंटरनेट है, जैसे आप ये देखिए 2016 के बाद इस देश में इंटरनेट की क्रांति आई है और मोबाइल ऐप्स की क्रांति आई है। तो किसान के लिए जो हमारा जैसे जिस प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी हम काम करते हैं, सिर्फ वो उनको एक मोबाइल अगर वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उनको हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और बस सिंपल, और कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ जो खर्चा है वो इंटरनेट का है, जो कि वो आज भी क्या नाम से व्हाट्सएप के लिए या और कई सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा किसान को और कोई जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो कोई खर्चा नहीं है। मतलब उसको प्राइस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, नियर बाय तो मंडी के भाव पता लग जाएगा। आपका ये कहना है कि जितना किसान आज अपने, अमित आपका ये कहना है कि जितना किसान आज बैंडविड्थ अपने यूट्यूब पे मूवी देखने और गाने देखने में खर्चता है, उससे कम में आपके साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल। चलिए कहना है। राजेश जी, आपका क्या कहना है? नहीं, आई थिंक एवरी जितने बिजनेस मॉडल्स हैं टोटली डिफरेंट हैं। अमित का जो बिजनेस मॉडल है वो हमारे बिजनेस मॉडल से टोटली डिफरेंट है, बिकॉज वेयर ही इज द कस्टमर और अ क्लाइंट टू द फार्मर, वेयर ही इज प्रोक्योरिंग फ्रॉम फार्मर्स। हम लोग बेसिकली सर कोशिश दो तरीके से कर रहे हैं। सर, आपके सवाल का दो जवाब मैं देना चाहूंगा दो तरीके से। एक है एक्सेप्टेंस टू द टेक्नोलॉजी। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फार्मर उसको यूज कर सकता है और उसको हम यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है सर सस्टेनेबिलिटी, जो सरदार जी आई विल टेक कोट फ्रॉम यू व्हेन इन वन ऑफ द अदर पैनल्स वी वर डिस्कसिंग सर, वेयर दो कंपनियां आती हैं, 2 साल के लिए साथ में रहती है, पैसा मिलता है फंड गवर्नमेंट से, वो टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। जब गवर्नमेंट का फंडिंग खत्म होता है, सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। फार्मर के पास बहुत सारे एप्लीकेशन आप जाएंगे देखा होगा उनके पास में, जब तक फंडिंग रहती है यूज होता है, फिर खत्म हो जाए, वर्ल्ड बैंक हो या IFC हो या कोई अदर डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर है। तो हमने क्या सोचा कि एक तरह से ऑब्वियसली फार्मर के पास में, ये मैं बहुत क्लियरली और बहुत सीरियस जवाब देना चाहूंगा कि आज की डेट में फार्मर के दिमाग में बात है कि इसका कॉस्ट कौन देगा, और ये सबसे बड़ा प्राइस एंट्री बैरियर जो बोलते हैं वो है इनके दिमाग में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अमित यहाँ पर है, मे बी हम ऑफलाइन अमित से बात करें, और जो कंपनियां फार्मर के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ हम मिलकर जो उनके कस्टमर हैं, जो फार्मर कस्टमर हो सकते हैं, उनके साथ, या गवर्नमेंट हो गए या डेवलपमेंट सेक्टर्स हो गए, उनके साथ पहला 2 साल हम उनके साथ फार्मर काम करते हैं और उनको उस लेवल पे लेकर आते हैं जहां पर फार्मर को उसको फायदा समझ में है। आज के डेट में फार्मर को अगर वो फायदा समझ में आ रहा है, हमने भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जहां पर हम लोग 3-4 साल पे हैं, जहां पर फार्मर आधा पैसा देने को तैयार है उसका, और आगे चल के उसको जो वैल्यू दिख रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसको सही दाम मिल रहा है मार्केट में जो लोकल मंडी से मिल रहा था, तो वो उसको एक्सेप्टेंस करता है।
बट जाहिर सी बात सदानंद जी, आपने एकदम सही सवाल किया कि वी आर इन दैट ट्रांजिशन पीरियड वेयर फार्मर्स को एक्सेप्टेबिलिटी लाने के लिए हमें बहुत सारे यूज केसेस, बहुत सारे डेमोज देने पड़ेंगे, और उसके बाद एक टाइम आएगा जहां पर जो अमित ने कहा कि कॉस्ट से हट के उसको इन्वेस्टमेंट लगे, कि ये मैं टेक्नोलॉजी एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करूं, ना कि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। सर थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी बात कही, और मैं किसान भाइयों को एक यह बात कहना चाहूंगा कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर आज आपको बैंक जाना है, आप अपने घर से निकले, आपने एक बस हायर करी, रिक्शा हायर किया, बैंक गए, 4 घंटे खराब किए, वापस गांव आए, ये जो रिक्शा और बस का भाड़ा है, हम ये जोड़ते ही नहीं है कि मेरा जब बैंक आने जाने में खर्चा क्या हुआ। हम ये सोचते हैं बैंक गए थे, वहां तो मेरा फ्री में चेक बन गया, या मेरा फ्री में वहां बैंक अकाउंट में तो अकाउंटेंट ने मैंने पैसे दिए, उसने एंट्री कर दी। हम उस यूनिट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, लेकिन हम पूरा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है हम उसको नहीं देखते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान में खासकर स्मॉल इंडस्ट्रीज और स्मॉल फार्मर्स के लिए कि हम जितना काम करते हैं हम उसका प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं करते, हम कॉस्टिंग भी गलत करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बहुत सारे किसानों के साथ काम करता हूँ, बीज सस्ता है हम ले लेते हैं, अच्छा बीज है 500 रुपए का है, सस्ता बीज है 300 रुपए का है, अच्छी दवाई है 500 रुपए की, सस्ती दवाई है 300 रुपए की। हम ये भूल जाते हैं कि जो 300 रुपए वाला बीज अगर वो आपको 2 टन देता है और 500 वाला बीज अगर आपको आउटपुट 2.5 टन देता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा या घटा ये समझना पड़ेगा। एक दवाई है जो आपको 1 लीटर चाहिए, कीमत मान लीजिए उसकी 1000 रुपए है, और एक दवाई है जो 4 लीटर लगती है, उसकी कीमत मान लीजिए 500 रुपए लीटर है, तो कौन सी सस्ती पड़ेगी? हमें किसानों को कॉस्टिंग सिखाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ी कमी है, हमने किसानों को कभी वाणिज्य, जिसको मैं कहता हूं ना, कॉमर्स नहीं सिखाया, ट्रेड नहीं सिखाया। इसीलिए किसान पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, उगाता रहा, लेकिन वो बेचारा कभी कमा नहीं पाया। कमाया किसने? बिचौलियों ने। कमाया किसने? जिसने शोषण किया, वो कमा गया किसान की मेहनत पे। लेकिन जिसने मेहनत करी वो नहीं कमा पाया, क्योंकि उसको व्यापार समझने नहीं दिया किसी ने। कॉस्टिंग कैसे की जाती है ये आज तक हमने किसानों को सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब डायरेक्ट पेमेंट किसानों की जेब में आएगा, बैंकों में आएगा, जैसे भारत सरकार का निर्णय है, और जब किसान को पता लगेगा कि हाँ मेरी फसल का मुझे 20,000, 50,000, 40,000 जो भी मिला, अब मैं इसको कैसे खर्चूं, तब शायद वो सोचना शुरू करेगा। क्योंकि अभी तो उसके बैंक में पैसा आता ही नहीं था, वो तो आड़तीये पे निर्भर था, तो वो सोचता भी नहीं था। अब शायद सोचना शुरू करेगा कि पैसे उसकी मेहनत का है, वो वेस्ट नहीं है, उससे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे निकाले। तो वक्त बदलेगा। सत कुमार जी, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें एंट्री बैरियर या कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? Sir, if we look at the farmers, I'll put it, I mean, the various way we can classify. One way is like small farmer, let's say less than 1 acre, and relatively larger farmer. Second thing is like the farmers growing commercial crops like pomegranate or coffee or some other crop. So those farmers are willing to pay and they are paying us. But there are farmers, let's say, who are just growing paddy and wheat, the crop which they consume. Their farmers are not willing to pay. So we are following the freemium model. So to those normal crops, we are giving it absolutely free. We are not charging farmer anything. And for the commercial crops, we are charging farmer and we are testing how much we can price. We are working with several kind of farmers. But for a large number of usage for us is free. And we hope to keep it free for all the small and marginal farmer and for all the food crops. Great. So ये तो अच्छी बात आई कि भाई देखिए जीरो कॉस्ट से लेकर यूटिलिटी बेस्ड कॉस्टिंग है। एज ए कस्टमर मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, जो भी हमारे किसान भाई प्रोग्राम देख रहे हैं जो है, आप ये मत देखिए कि चीज फ्री है या इसके 10 रुपए लग रहे हैं या 100 रुपए लग रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है। क्या आपने 100 रुपए देके 1000 का फायदा हुआ या नहीं हुआ? सोच वो होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे और हम फ्री के चक्कर में रहेंगे, तो फ्री में प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई आपको सबस्टैंडर्ड सर्विस भी दे सकता है, अनरिलायबल सर्विस भी दे सकता है। तो फ्री में आपका, जिसे कहते हैं ना कि अपफ्रंट कॉस्ट तो बच गया, लेकिन कभी कभी उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वक्त के साथ सबको समझ आती है, हम लोग भी समझते हैं, टाइम लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर मैं एक आधा एकड़ का किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर नहीं है,
क्या आप लोगों का प्लेटफॉर्म, क्विकली यस और नो में अगर आप मेरे को जवाब दे दें, स्टार्टिंग विद अमित फॉलोड बाय राजेश एंड सत कुमार जी, क्या मैं आधा एकड़ का छोटा किसान, मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा? आपको क्या मुझे जुड़ना चाहिए आपसे या नहीं जुड़ना चाहिए, या आप कहोगे कि नहीं अभी आप मिल के करो, एफपीओ इज बेटर, कोऑपरेटिव इज बेटर, हाफ एन एकड़ फार्मर इज नॉट गुड, एटलीस्ट 3 एकड़ होना चाहिए, 4 होना चाहिए? क्या सुझाव है आपका हमें? सर मेरा तो इसमें सुझाव है कि जैसे आधा एकड़ का फार्मर भी, छोटे फार्मर भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, पर बड़ा फायदा तब होता है जब किसान समूह में आके कोई चीज को बेचे या खरीदे। देखिए, दो ही चीज करता है किसान, इनपुट खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, सीड खरीदता है और अपने क्रॉप को बेचता है। अगर वो समूह में, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से, चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से, या ये दोनों नहीं भी हैं, इनके अलावा भी अपना वो ग्रुप में अगर बना के कोई काम को करता है तो उसको ज्यादा ही लाभ मिलेगा। क्योंकि आप ये देखिए, अगर कुछ छोटा किसान है, वो 1 टन को कोई प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा पड़ेगा, उसके लिए भी पड़ेगा और बायर के लिए भी पड़ेगा। तो अगर मान लो वो सब पूरा 4-5 किसान मिलके या 20-25 तो वही बात आती है ना अमित जी, बात वही आती है कि हमें टोटल कॉस्टिंग देखनी है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। यस। और जैसे जैसे हम मिलके करेंगे, देखिए एफपी और कोऑपरेटिव का पर्पस यही था कि छोटा किसान, जैसे अक्सर आज की तारीख में हम किसान नेताओं से सुनते हैं, छोटा किसान है, 2 एकड़ का किसान है, आप कहते हो कि मंडी में ले जाके बेचे, वो कहाँ लेके जाएगा? एक इलॉजिकल जस्टिफिकेशन बहुत से लोग देते हैं। लोग ये नहीं समझते कि भाई अगर एक आदमी 2 बोरी गेहूं उगा रहा है तो उसी के गांव में 4 आदमी और है जो गेहूं उगा रहे हैं, मिलके एक ट्रैक्टर भाड़े पे ले सकते हैं, ट्रक भाड़े पे ले सकते हैं, कॉस्ट शेयरिंग कर सकते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि आप 5 बोरी लेके एक ट्रक हायर करो और फिर उसको लेके आप पूरी दुनिया में घूमते रहो। हम लोग किसानों को कहीं ना कहीं सिखाना नहीं चाह रहे हैं, मिसलीड हम ज्यादा करते हैं ये बताने के लिए कि सही तरीका क्या है। राजेश, आपका क्या कहना है इस मामले में? एक सेकंड सर, एक हमारे सामने अमूल का बहुत बड़ा एग्जांपल है। मैं राजेश उस पे आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं, मैं उस पे आऊंगा। राजेश, आपका क्या कहना है कि आपके यहाँ पे छोटा किसान जुड़ सकता है? क्या कॉस्ट बैठेगी अप्रोक्सीमेटली? सर हमारे साथ में हमने एग्रीगेशन मॉडल पे हम अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो आपने बताया कि यूटिलिटी मोड में होगा, वन फिट ऑल सॉल्यूशन नहीं है। जहां तक एडवाइजरी है या डॉक्टर सतकुमार की जो सर्विसेज हैं, जहां पर वो बोल रहे हैं कि फार्मर डायरेक्टली अपना फार्म का डेटा कैप्चर करके फैस्ट सर्विस ले सकता है, आई थिंक वहां पर इंफॉर्मेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सर इंडिविजुअल फार्मर्स आ सकते हैं। बट जहां पर एग्रीगेशन मार्केट लिंकेज की बात होती है, जो आई एंटायरली एग्री विद अमित कि उनके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, बट वैल्यू तब हो पाएगी जब वो एग्रीगेट करेंगे सर। ओके, छोटा सा कुमार जी। I think Rajesh ji answered. Yeah, for us it does not matter even if it's quarter of an acre. We are comfortable with it. Okay, so दोस्तों देखो, अकेले अकेले आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात आती है कि बिजनेस में आधा एकड़ का किसान, अगर मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास के खेत के दोस्त आपके साथ जुड़ जाते हैं या आपके गांव में आपके रिश्तेदार भाई दोस्त मिलके अगर काम करते हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन का, उस बाजार का ज्यादा अच्छी तरह से फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कलेक्टिव काम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके खर्चे कम हो जाते हैं। आप अगर आधा टन लेके बाजार जाएंगे और मान लीजिए कि भाड़ा 1000 रुपए है, और उसी ट्रैक्टर के अंदर या ट्रक के अंदर मैं 5 टन माल डाल दूं, 2 टन की जगह या 1 टन की जगह, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। ये बात हमें समझनी पड़े। अब हम आते हैं उसी से संबंधित अगले सवाल की तरफ, कि जब बायर सेलर की हम बात कर रहे हैं, एक सवाल ये आता है कि साहब आज तो फिजिकल मंडी में तो बायर मेरे सामने है, मैं उसको देख सकता हूं, उसका एड्रेस मुझे पता है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, हम आपको बायर से जुड़वा देंगे। जो अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो नहीं चाहते कि देश में सुधार हो, वो कहते हैं नहीं बायर पैसे लेके भाग गया, कौन पता लगाएगा कि ये बायर सही है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको माल दिया, आगे माल गायब हो गया, हमारा पेमेंट नहीं आया। इस तरह के डाउट लोगों के हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरह के डाउट को एड्रेस करने के लिए अमित, आपके पास क्या रास्ता है? तो देखिए, जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म, हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी बायर रजिस्टर्ड होता है तो हम केवाईसी लेते हैं, जीएसटी रिटर्न उसका हम चेक करते हैं ऑनलाइन। आजकल डिजिटल तरीके से सब कुछ पॉसिबल है, उसका बैंक अकाउंट तक हम चेक करते हैं। प्लस हमने जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे मैंने पहले बताया था। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ बीच में, क्या ऐसा हुआ है कि आपने माल दिया और किसी किसान का कोई पैसा लेके भाग गया और किसान को पैसा नहीं मिला? नहीं सर, आज तक मतलब कोई इस तरह एक भी इंसिडेंट इस तरह का नहीं है। ओके, राजेश सर आई थिंक
एक्सपीरियंसेस, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं मार्केट में, ऐसा हो चुका है। फार्मर गलत नहीं है, कुछ हद तक सही है कि जहां पर ऐसे बिचौलियों ने पैसे लेके भागा है, बट एज ए सेड, अगर एक बोरे में अगर 2 दाना खराब है तो पूरा बोरा खराब नहीं होता है। सब कंपनी ऐसे नहीं है। बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है सर कि ये इट इज अ ट्रांजिशन फेज, जो अमित या बाकी एग्रीटेक कंपनीज काम कर रही है। फार्मर्स इवॉल्व हो रहे हैं और यंग जनरेशन के जो फार्मर्स है वो समझ रहे हैं कि क्या होता है, और बायर्स भी देख रहे हैं कि उसमें कॉस्ट एक्विजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो फिजिकल जाके जाने से अच्छा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, स्केल कर सकते हैं। वेरी गुड। सतकुमार जी। Sir, I think we are not into this procurement. Yeah. देखिए, मैं सिर्फ किसान साथियों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप पेपर पे काम करते हैं और डिजिटल काम करते हैं, डिजिटल का फायदा क्या है? आज जो बॉम्बे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो कागज पे कहीं नहीं है। जो बॉम्बे के अंदर जो न्यूज पेपर्स में आ रहा है, जो टीवी में आप लोग रोज न्यूज देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई कागज नहीं है। लेकिन सारे गुनाहगार पकड़े जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। चाहे वो इंटरनेट पे थे, चाहे वो मूवी कैमरे में थे, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में थे, चाहे उनके व्हाट्सएप थे, एसएमएस थे। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता है कि आप उससे बच नहीं सकते। आपका कागज है, मैं फाड़ के फेंक सकता हूं, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट को आप फाड़ नहीं सकते। ट्विटर अकाउंट में आपका पिछले 5 साल का अकाउंट मिल जाएगा, आप भूल गए होगे लेकिन मशीनों को याद है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो जितना आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट करेंगे उतने फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। जो अमित ने कहा, मैं आपको, हमारे जो किसान भाई हैं, मैं उनको एक और चीज जोड़ देता हूं। एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। मैं पार्ट हूं उस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है हिंदुस्तान में कि फिजिकल ट्रेड में फ्रॉड हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग ट्रेड के अंदर एक भी फ्रॉड का केस नहीं आया। क्योंकि जो आदमी गलत माल दे रहा है उसको डिजिटल रसीद मिल रही है। कल को वो ये नहीं कह सकते कि ये मेरा माल नहीं है। तो अगर बोरी में उसने 10 बोरियां दिखा दी कि माल अच्छा है और बाकी 20 के अंदर कचरा भरा हुआ है, तो किसान भी नहीं कह सकता कि नहीं साहब ये माल मेरा नहीं है। बकायदा आपके नाम की बार कोडिंग है, डिजिटाइजेशन है और आपके सामने सिग्नेचर है। इसी तरह से ना बायर भाग सकता है ना सेलर भाग सकता है। और आने वाले समय में इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितना डिजिटाइजेशन होगा, जैसे एक हमारे किसान भाई, मैं उसी से रिलेटेड आ रहा हूं कि डुप्लीकेट सीड्स और केमिकल्स। अभी कल ही एक राज्य के कृषि मंत्री से मेरी बात हो रही थी। वो कहते विजय जी, हमारे यहाँ पे बहुत डुप्लीकेट सीड आ रहा है और किसान बहुत परेशान है, डुप्लीकेट पेस्टिसाइड आ रहा है, कैसे रोका जाए? मैंने कहा इंस्पेक्टर नहीं रोक सकता, कागजी कार्रवाई नहीं रोक सकती, रसीद नहीं रोक सकती, आदमी नहीं रोक सकता। आप हर कानून बना दीजिए इस देश में कि हर सीड और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के बैग पे क्यूआर कोडिंग होगा, डिजिटल कोडिंग हुआ, ताकि किसान अपने मोबाइल से स्कैन करे और जैसे स्कैन करे डायरेक्ट उसका कंपनी से कनेक्ट हो जाए उस डब्बे के साथ कि वास्तव में डब्बा उस कंपनी ने बनाया था या किसी और ने बीच में बना के डुप्लीकेट भेज दिया। जिस दिन आप ये कर देंगे, डुप्लीकेट खत्म हो जाएगा। या तो वो दुकानदार जानबूझ के रख रहा है तो दुकानदार फंसेगा, तो दुकानदार रखने से पहले खुद भी स्कैन करेगा कि ये कहीं जो दुकान पे आया है मेरे को सेल्समैन माल देने, ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी आपको फुल प्रूफ बनाती है, रियल टाइम बनाती है, रिलायबल बनाती है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और जो बार बार आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि किसान ने आपके साथ डील किया, सप्लाई दे दी, उसका माल आगे बिका, कितने पे बिका, कैसे बिका, उसको कैसे पता लगेगा कि उसका किस रेट पे माल बिका और पेमेंट उसको कब होगी? अमित जी। तो सर, जैसे ये हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जब किसान माल बेचता है तो एक ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बन जाता है कि उसका जैसे ही उसका डिलीवरी होगा तो डिलीवरी के विद इन 12 आवर्स उसका पेमेंट उसके खाते में हो जाएगा। और वो प्लेटफॉर्म इंश्योर करता है, प्लेटफॉर्म उसकी गारंटी लेता है कि भाई ये पेमेंट फार्मर का अगर माल डिलीवर हो गया है तो होगा 100%। तो ये पूरा सीमलेस प्रोसेस होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई माल मतलब किसान ने डिलीवर कर दिया उसका पेमेंट नहीं होगा, तो फिर प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन क्या रही, उस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या रहा? यही तो, इन्हीं चीजों का जो डेफिसिट है, इसी के लिए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये सब चीजें खत्म कर रहे हैं। यदि किसी बायर को पेमेंट्स की जरूरत है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो वो डेटा बैंक के पास जा रहा है
कि हाँ भाई इसने माल खरीदा है, इसको बायर को वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वो बैंक भी उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक भी ये चाहते हैं जो सप्लाई बायर ले रहा है तो उनका वो डायरेक्ट पेमेंट कर दें सप्लायर को बायर के बिहाफ पर। तो इस तरह से कहीं कोई मतलब पेमेंट की एक भी मतलब इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे डिफॉल्ट हुआ हो पिछले 3 साल में हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं अगला एक सवाल लेता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम भी घड़ी के हिसाब से चल रहा है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। ये सेमिनार नहीं है कि लंच टाइम हम सरका दें, क्योंकि एग्जैक्टली 11 11:30 या 12 बजे ये प्रोग्राम डिस्कनेक्ट होगा, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा हम जितने सवाल ले सके। एक चीज और बताइए कि सवाल ये आ रहा है कि जब हम आपके वेयर हाउस में देते हैं, आपका फिजिकल ट्रेड में माल जाता है, क्या ये जो कंसाइनमेंट है आप इसको कहीं पे फ्यूचर्स पे भी हेजिंग कर सकते हैं किसानों के लिए, ताकि उनका जो प्राइस मार्केट अगर फ्लक्चुएट होता है तो उनका नुकसान ना हो? हाँ सर, किसान अगर कोई चाहे तो वो अपना माल फ्यूचर पे हेज कर सकता है, बशर्ते कि वो कमोडिटी एक्सचेंज में लिस्टेड हो और साथ में क्या नाम से उस कमोडिटी में लिक्विडिटी हो। तो मतलब Okay. इस हाँ किसान इजीली कोई भी कर सकता है, इवन एक्सचेंज सारे प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। वेरी गुड। अगला सवाल राजेश और सतकुमार जी से है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, क्या इसमें आप किसानों को क्रॉप प्लानिंग में भी हेल्प कर सकते हैं कि आपको अगले साल सीजन में कौन सी क्रॉप लगानी है, किसके रेट अच्छे रहेंगे, क्या करना है? राजेश, टू स्टार्ट विद। सर एकदम सही सर। सो बेसिकली जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा सर कि आज सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी है इंडिया में कि इट इज मोर प्रोडक्शन ड्रिवन एग्रीकल्चर, जो मार्केट ड्रिवन नहीं है। तो आज हमने कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम मार्केट का क्या फीडबैक है उसके हिसाब से हम फार्मर्स को एडवाइस दे रहे हैं। इट इज नॉट फोर्सफुल बट वी टेल देम कि आज आप ये ग्रो कर रहे हैं, आप अगर इसकी जगह ब्लैक मिलेट ग्रो करते हैं तो इसका प्राइस अच्छा मिलेगा, इसकी अच्छे डिमांड में है। तो इस तरह के हम एडवाइजरी जरूर देते हैं, बट इट इज मोर ऑफ लाइक एडवाइजरी एंड ऑप्शन टू अ फार्मर। एंड ऑल्सो अगर वो नया तरीके का क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसका क्या, उसकी टेक्निक क्या है ग्रो करने का, जो पहली बार अगर ग्रो कर रहा है तो उसको हम एडवाइजरी भी देते हैं सर। एक सर और पॉइंट ऐड करना चाहते थे, इफ 2 मिनट और है तो 1 मिनट और है। सर आपने स्पूरियस सीड वाली बात बताई, जो खरीद रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है सर। जैसे हमने पंजाब गवर्नमेंट में सीड प्रोटो में काम कर रहे हैं सर, उनके वैल्यू चेन में हमने ये भी देखा है कि जो जेन्युइन फार्मर ग्रो कर रहा है सीड, उसको भी प्राइस नहीं मिल पाता है क्योंकि स्पूरियस सीड सस्ते मार्केट में बिकता है। तो इट इज लॉस फॉर नॉट ओनली फॉर द बाइंग फार्मर बट जो ग्रो कर रहा है उसको भी सबका नुकसान है, सब पूरे समाज का नुकसान होता है। 2 नंबर का काम सबका नुकसान करता है, किसी का भला नहीं करता, सिर्फ चोरों का भला करता है जी। तो वो हमें समझना। सतकुमार जी, आपका जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, उससे आप क्या क्रॉप फोरकास्टिंग और क्रॉप प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं? So there are two parts to like the crop, which crop to grow. One is the market side, like what could be price in future. So we are not currently focused on that. The other part is about the climate suitability. Yes, based on that we tell which crop you can grow. Okay. अच्छा, एक सवाल इम्पोर्टेंट है। किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट निकालती हैं, कहीं पे सब्सिडी है, कहीं पे जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बाकी चीजें हैं। एक सेक्टर जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लाइव स्टॉक और फिशरीज। तो मेरा ये जानना है आप सबसे कि इस एक ही सवाल में 2 छोटे सवाल हैं। सरकारी पॉलिसीज का भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करता है कि कौन सी सुविधा किसानों को सरकार से मिल सकती है? और दूसरा, एग्रीकल्चर के अलावा जैसे हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, उसमें भी आप लोग कुछ हेल्प करते हैं? अमित सर डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर में हम बहुत हेल्प करते हैं। और क्या नाम से इसमें जो भी सरकार की सब्सिडी है, जैसे अभी फ्रूट्स पे सब्सिडी है कि उन्होंने फ्रेट की सब्सिडी दे रखी है। अगर महाराष्ट्र के किसान को अपने जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, वो अगर राजस्थान भेजने हैं तो जो उसका फ्रेट लगेगा उसका 50% गवर्नमेंट देगी। तो उस तरह की जो बेनिफिट्स जो आते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है, वो हम डेफिनेटली किसानों तक पहुंचाते हैं और किसानों को बहुत बड़ा एक फायदा उसका मिलता है। जैसे मतलब आप ये भी बताते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, उसका फॉर्म वगैरह नेट पे मिल जाता है आपके पास? हाँ, अगर मान लो, हाँ बिल्कुल। जैसे उस तरह का कोई भी अभी रिसेंटली एक स्कीम आई जहाँ पे हमें एफपीओज बनाने हैं। गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, सीबीबीओ बनाया हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और उन्होंने बोला कि 25 एफपीओ आप बनाइए, प्रमोट करिए। तो हम पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं और एफपीओज बनवा रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह की चीजें हम करते रहते हैं। राजेश,
जी सर, हम लोग भी डिफरेंट अलाइड सर्विसेज पे भी काम कर रहे हैं, जैसे लाइफ स्टॉक है, आपने बताया एक्वाकल्चर है, हनी बी, एक बी कीपिंग इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स वेयर रिसेंटली आफ्टर 2017 मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कम आउट विद द न्यू प्रोग्राम वेयर द लॉट ऑफ सब्सिडीज आर देयर. सो व्हाट वी डू सर, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, क्योंकि फार्मर हमारे पास ऐड हो गया है, हमें पता है कि वो किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्या क्रॉप ग्रो कर रहा है, तो उसके स्पेसिफिक जो स्टेट लेवल पे सेटल आउट जो स्कीम्स हैं उसको भी हम कम्युनिकेट करते हैं फार्मर्स के साथ में एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, एज वेल एज फ्रॉम अ एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करते हैं कि पीएम किसान या फिर बाकी जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की हैं उसकी क्या बेनिफिट्स है, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, या फिर फॉर्म्स अगर हमको प्रोवाइड, फॉर्म्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ऐसा कि प्रिंट आउट निकालना कुछ करना, बट नंबर जरूर प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के या ब्लॉक लेवल पे, जिनसे वो बात करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं सर वहां पर. बहुत बढ़िया. सतकुमार जी. So for us, not at the moment. Yeah, maybe we'll do in future. Okay. एक थोड़ा सा हट के सवाल है और जो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए. आज गांव में हमारे पास बहुत सारे एजुकेटेड यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो गांव में रहते हैं, किसान उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो उन्हीं के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं. वो अगर जुड़ना चाहें आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को भी मैसेंजर्स चाहिए आपकी बात किसानों तक, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि एक गांव का बच्चा ही सही बात बता रहा है, क्योंकि गांव वालों को उस पर ज्यादा भरोसा होगा बनस्पत की एक बाहर से सेल्समैन आए और उसका पता नहीं कल वो कहाँ मिलेगा. तो क्या कोई गांव के अनएम्प्लॉयड बच्चे, यूथ, एजुकेटेड यूथ, बहुत सारे बीएससी एजी के हैं, ग्रेजुएट्स हैं, किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं? क्या कुछ विचार है आप लोगों का इसमें? सर हम तो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं. हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है एग्री एंटरप्रेन्योर्स. तो एग्री एंटरप्रेन्योर्स को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो इनपुट को बेचने में हमारे साथ हेल्प कर रहा है और साथ में किसान का जो आउटपुट है उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और बहुत ही एक अच्छा, एक मतलब हमें अच्छा रिजल्ट मिला और अब तक लगभग हम 550 से ऊपर एग्री एंटरप्रेन्योर बना चुके हैं अक्रॉस इंडिया. तो ऑन एन एवरेज उस बच्चे की कितनी, किस तरह से उसका रिन्यूमरेशन होता है अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे आप लोगों से? क्योंकि 6 लाख गांव है, तो 6 लाख लोगों से तो हम जोड़ ही सकते हैं ना. बिल्कुल सर. तो हमने ये देखा है सर, 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीने तक वो इनकम कर पा रहा है. तो लगभग सालाना 3-3.5 लाख रुपए इनकम वो कर पाता है. बहुत बढ़िया है. शहर में नौकरी करने से तो अच्छा है कि घर में बैठ के किसानों का भी भला करे और अपने परिवार का भी भला करे और एक नई टेक्नोलॉजी, नई दुनिया से जुड़े. मेरे को लगता है कि इन बच्चों को शहर की तरफ नौकरी नहीं ढूंढनी चाहिए, इसी पे मेहनत करें. राजेश, आपके यहाँ से कैसे जुड़ सकते हैं? सर हम लोग बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं गवर्नमेंट और डेवलपमेंट सेक्टर्स के साथ में, जहां पर किसान सखी, किसान मित्र बना रहे हैं, जो कि बेसिक बीएससी एग्रीकल्चर हैं या फिर वो गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गांव के लोग बेहतर समझते हैं कि वहाँ के चैलेंजेस क्या है और एक्सेप्टेंस भी उनका ज़्यादा होता है कि अगर वो वहाँ के बंदे को बताए कि क्या बेहतर पॉलिसीज है, स्कीम्स है. और साथ में सर जैसे हमने बताया कि हम बहुत सारे डिफरेंट एग्रीगेटर साथ काम कर रहे हैं, जैसे बैंक है तो बैंक उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्टनर बनाते हैं उसको, ताकि वो बैंक अकाउंट ओपन कर सके, एटीएम ट्रांजेक्शन कर सके. अब जैसे हम कुछ सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी से काम करते हैं, वो एक चैनल बन जाता है उनके पास में, जाके वो फार्मर्स एग्रीगेट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उनको कमीशन मिलता है. मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है सर अभी कि कितना ये अमाउंट वो कमाते हैं, बट वो नंबर्स बढ़ रहे हैं. तो नंबर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है सर कि वर्ड ऑफ माउथ ये है कि चीजें बेहतर हो रही है, वहां पर ऑप्शन मिल रहा है उनको वहां पर. बहुत बढ़िया. सतकुमार जी, आपके पास? We are connecting. Sir, we are doing pilot in several states in India. So in one pilot, we are testing to finalize like how to remunerate them, fixed part, the incentive base, etc. But we will definitely use, because we need people to reach farmers. So and these can be very valuable link. These boys who are from the same village know the farmers. So definitely will work. We're just finalizing terms and conditions. So in one pilot, we are trying. Okay. मेरा एक अगला सवाल है, लास्ट 2 सवाल इस डिस्कशन के, फिर मैं माथुर जी को कहूंगा वो अपने व्यूज भी रखें. मेरा एक सवाल ये है कि ये आज की दुनिया में जैसे टेक्नोलॉजी शहरों में काफी हद तक हम लोगों ने अडॉप्ट करी, सोशल मीडिया काफी हद तक लोगों ने अडॉप्ट किया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, व्हाट नॉट, सब तरह की चीजें हो रही है, किसान भी उनका इस्तेमाल करता है. जब वो आज आपसे बात करता है या आप उनसे बात करते हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को लेके, किस तरह का रेजिस्टेंस या चैलेंज आप लोगों के सामने आता है और उसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए कलेक्टिवली? जैसे आपकी सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज, उनके लिए या सरकार के लिए आपका कोई सुझाव है कि सर अगर हम ये जानकारी दें या इस तरह से हम किसानों को एजुकेट करें हमारे केवीके के माध्यम से या यूनिवर्सिटीज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, जो भी है, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, क्यों किसान
जैसे कहते हैं ना कि विद ओपन आर्म्स इस नई प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करने में हिचक रहे हैं। अमित, टू स्टार्ट विद यू। सर, एक हमारे जैसे किसान को एक तो पूरी आजादी होनी चाहिए कि अपना माल कहीं पर भी बेचे, कैसे भी बेचे, वो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। तो वो तो उसके नए अंदर कानून ने कर दिया। हाँ, तो एक तो जैसे वो उसका अच्छा प्रमोशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, ये मैं कहना चाहूंगा कि हम जैसे आजाद हैं, हमारा कुछ भी हम कहीं पे भी खरीद सकते हैं, ऐसे किसान भी, उसको पूरी आजादी होनी चाहिए अपनी फसल का एमआरपी फिक्स करने की, और कहीं पे भी वो माल पूरे बाजार में बेच सकता है, कहीं का भी रेट। एक तो ये उसको सीमलेस सरकार को बनाना चाहिए। और सेकेंडली, जैसे अभी हम देखते हैं कि कंपनीज को जो काम करना है, तो एक जैसे यूआई यूएक्स, यूजर फ्रेंडली जो एप्स होते हैं, वो बनाना बहुत जरूरी है किसान के लिए, कि मोर ऑफ इमोजी यूज, मोर ऑफ टच बेस्ड थिंग्स, कि वो मतलब ज्यादा उसमें पढ़ना लिखना नहीं पड़े। तो वो एक किसान के सामने हमने चैलेंज देखा है, वो किसान का चैलेंज नहीं, कंपनीज का चैलेंज है। तो कंपनीज को थोड़ा और अपने प्रोडक्ट्स में अच्छा उसको लुक एंड फील अच्छा देना पड़ेगा, जिससे कि किसान उसको सीमलेसली यूज कर पाए। लैंग्वेज कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज है सर, किसान को अपने ही क्या नाम से लैंग्वेज में पढ़ने में और उसको काम करने में ज्यादा मजा आता है। राजेश, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? सर, मुझे लगता है कि सर आप अमित ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वो इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, नॉट फ्रॉम द फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारी जैसे कंपनीज को भी हम इनोवेटिव होना पड़ेगा। बट सर, जो मैं आई फोकस ऑन मेजर अदर पॉइंट व्हिच यू मेंशन्ड इन द योर क्वेश्चन वाज लाइक कि गवर्नमेंट और क्या बेहतर कर सकती है। गवर्नमेंट के पास में एक्सटेंशन टीम जो है, काफी बड़ी एक्सटेंशन टीम है, जो आज अगर हम उनके साथ पहला स्टेप ले, जहां गवर्नमेंट मैंडेटरी करे कि एक्सटेंशन टीम जो है वो प्लेटफॉर्म यूज करे, वो डेटा टेक्नोलॉजी यूज करे, क्योंकि उनका जब हम फार्म, आप भी जाते हैं सर फार्म में, आप देखेंगे कि ब्लॉक लेवल पे जो किसान मित्र या जो पहला टच पॉइंट जो होता है, उसका फार्मर का एक्सेप्टेंस ज्यादा हो, वो देखेगा ऐसा यूज करते हुए, तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि फार्मर चाहता नहीं है सर। मैं एक बहुत जैसे कालाहांडी या कंदमहा जैसे बहुत ट्राइबल एरियाज उड़ीसा में फिलहाल गया था लास्ट मंथ में, और हमने वहां देखा कि लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वन ऑन अदर। वो वेबसाइट से चेक करते हैं टेम्परेचर कितना है, वेदर कंडीशन कैसा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी है सर वहां पर। बट हम एज राइटली मेंशन्ड बाय अमित की वी हैव कंपनीज हैव टू बी मोर इनोवेटिव, easy to use UI UX देना पड़ेगा हम लोग को, और गवर्नमेंट शुड आल्सो हेल्प देम फ्रॉम द फ्रंट एंड। उनके जो टीम्स हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि फार्मर्स को देख के सीखे और आगे इसको यूज करे सर वहां। तो सत कुमार जी, आपका कुछ सुझाव? I also agree. First challenge is for us, not to the government. How do we make our things very simple and easy to use? Like I also come from the farming background, so I know if I go and leave the farmers, when I talk to, let's say, IT graduate, they are not able to understand our application in simple way. So how do we make it so simple that it becomes useful to the farmer? So it's a challenge to us. And yes, government can help. Like if I go to an unknown place, and with my background, maybe some can search, let's say you can search on net, etc. How do I cannot just go and then start ask farmer to start using my application. So if there is some route where government department, it can be agriculture, KVKs, or some other department, rural development department, there is some way we can approach them, and then they can take us to the village. So farmers see some friendly village face, and then through them we can get connected. So it will be helpful. Yeah. But Rajesh, you wanted to add something? Yeah, sir. I think Tomar sir, you have completed the point. Yes. So I think one last point here is that, sir, the company should also come in a collaborative manner where we should complement the services together each other, because once we are working in this domain, ये तो आपके ऊपर है ना यार, उसमें हम क्या करेंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज नहीं कर सकते, तो इसमें किसान का क्या कसूर? नहीं, किसान की पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ। हमें लगता है कि सर कि एक कंसोलिडेटेड सर्विस प्रोवाइड भी हमें करना पड़ेगा। कम है, इसलिए मैं उसको चर्चा को आगे नहीं ले जा रहा हूँ। अदरवाइज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए, किसान को 10 जगह मत दौड़ाइए, एक जगह पे उसका काम करिए, और अपना अपना जो कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसको सामने लाइए। सब कुछ सब स्टैंडर्ड करने से अच्छा है पूल द एक्सीलेंस ऑफ ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो सुझाव दिया, मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि आप कोशिश ये करिए कि जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं, उनको भी एजुकेट करिए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो भी टेक्निकली उतने एडवांस नहीं है जितना टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी और जितनी सर्विसेज बाजार में अवेलेबल है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग सिर्फ किसान का ही नहीं चाहिए, डिसीजन मेकर्स का भी चाहिए। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि अगर सीईओ की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है तो बेचारे सेल्समैन को सिखा के क्या करो।
क्योंकि सीईओ तो वही कहेगा जो उसको समझ में आता है, वो कहेगा पता नहीं ये क्या फालतू बोल रहा है। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, एमडीज हैं, सीईओज हैं, एचओडीज हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी ही आज जरूरी है जितनी एक किसान की, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके लिए नई है, नए प्लेटफॉर्म्स है। तो कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है, सबको सीखना पड़ेगा। अब टाइम अपने पास कम है, मैं माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि अनदर 3-4 मिनट्स अगर वो अपनी बात रखें तो उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं दूंगा। तो माथुर साहब आपका स्वागत है। जी थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर जी। मैं पूरे डिस्कशन को बहुत गौर से सुन रहा था और मुझे लगा कि बहुत ही यूजफुल और बहुत ही डाउन टू अर्थ आपका सब पैनलिस्ट ने बात करी। और ख़ास तौर पर सदाना साहब ने बहुत ही इंसाइटफुल सवाल रेज किए, जिससे कि हर चीज़ सही पर्सपेक्टिव में ऑडियंस को मिल सकी। मैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन से कनेक्टेड हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वेबिनार में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए पार्टनर। LMA एक टॉप रेटेड एफिलिएट है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, जो कि एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ इंडिया है फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। एंड LMA एक बहुत वाइब्रेंट बॉडी है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स की, with about 2000 individual and institutional members। और हम लोग वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और हाई इम्पैक्ट इंटरेक्शंस ऑन वाइटल पब्लिक पॉलिसी इश्यूज पर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। एक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है विच ओवरसीज LMA's प्रोग्राम्स, और इसमें लखनऊ के डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स फ्रॉम एकेडमिया, गवर्नमेंट, बिजनेस और नॉन प्रॉफिट्स शामिल हैं। लखनऊ में बहुत कॉरपोरेट प्रेजेंस नहीं है और इसमें इसलिए हम अपना फोकस करते हैं पब्लिक पॉलिसी पर। आजकल डॉक्टर नवनीत सहगल जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के। स्टार्टअप्स पर हम लोग बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और इससे यूपी में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने में बहुत मदद मिली है। ये जो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मेरे ख्याल से एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और इसकी वजह से मेरे ख्याल से वर्ल्ड में मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में हुए हैं, मोर देन चाइना, मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इस तरह के जो इंटरवेंशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इससे तो बिल्कुल बूम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यूपी में पर्टिकुलरली, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक मेन एक प्रोफेशन है कह लीजिए, या एक बिजनेस होना चाहिए, वो है, उसमें तो बूम हो जाएगा। और जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर रही है इन द रूरल एरिया, इट इज़ विजिबल। मतलब इसमें आपने जो इश्यूज रेज किए हैं सदाना साहब ने, उनके आंसर्स और जो 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 पैनलिस्ट ने दिए हैं या पार्शली दिए हैं, उनसे एक बड़ी मदद मिलेगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को या डिजिटल प्रोग्राम को पेनिट्रेट करने में। और ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह ये मेरे ख्याल से इमर्ज हो रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी associated with this very insightful discussion and program. Thank you, Mr. Sadana, for the opportunity.
थैंक यू सर, थैंक यू माथुर साहब, बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स रहे आपके, आप सीनियर हैं हम सबसे, और LMA का सपोर्ट रहा इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इवेंट को सक्सेस करने में। आई एम श्योर ऑर्गेनाइजर्स को आप लोगों का मार्गदर्शन भी मिला। अब लास्ट के 3-4 मिनट रह गए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर टुडे का एक सपोर्ट रहा फोकस एग्रीटेक टीम को कि किस तरह से हम इसको स्प्रेड करें। LMA का सपोर्ट रहा, प्रोफेशनल्स लोग जुड़े। LMA और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये इनवाइट करना चाहूँगा कि कुछ सिमिलर प्रोग्राम्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगर और फर्दर करेंगे तो we'll be very happy to support these programs. Sure, sir. Thank you so much for this encouragement, and we will definitely utilize this offer and opportunity which is given by you and the UP state. क्योंकि यूपी जैसा हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, तो अगर एक बड़ा स्टेट बदलता है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देश पे आता है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस एनकरेजिंग सपोर्ट। जैसा हम सब कह रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हम बात करते हैं नॉलेज इज पावर, IT इज लाइक ए ड्राइवर फॉर द नॉलेज, और IT प्लेटफॉर्म अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही है क्योंकि किसान सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उसको उसके फायदे नुकसान सब समझ में आ रहे हैं। तो इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से जो हमारे तीनों फेलो पैनलिस्ट थे, अमित, राजेश और सतकुमार जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे 100 से ज़्यादा करीब ऑडियंस जो जुड़े हम लोगों के साथ और टाइम निकाला उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी रिकॉर्डिंग YouTube पे भी अवेलेबल रहेगी जैसा मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, तो जो लोग मिस कर गए हैं वो दोबारा देख सकते हैं, जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया वो देख सकते हैं और आपस में सर्कुलेट भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, और ऐसे बहुत फोरम्स आने वाले दिनों में होंगे और बहुत काम करने की जरूरत है। किसानों तक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है। किसानों को भड़काने और मिसलीड करने वाले भी कम नहीं होंगे, लेकिन हमें किसानों को उनकी भाषा में, सिंपल भाषा में, विद कंफर्ट, कॉन्फिडेंस उन तक सही बात पहुंचानी। और किसान के साथ एक सबसे बड़ी बात होती है कि उसको प्रूफ चाहिए होता है, तो सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है। तो मेरा जितने भी IT लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं किसानों के लिए, कि अपना डेटाबेस स्ट्रॉन्ग करें, एविडेंस स्ट्रॉन्ग करें, ताकि किसानों को भरोसा जल्दी से जल्दी आए। So with this word, I will say thanks to Focus Agritech and their team, Vivek and Deepti ji, for your support for organizing this fantastic event. And I think we had a great learning opportunity. हमने सोचा था ये करीब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद हमें आधा घंटा में ऊपर निकल गई क्योंकि डिस्कशन इतने इंटरेस्टिंग थे। और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो हम नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट आई एम श्योर इट इज अ ग्रेट थिंग। And thanks to all of you for contribution. And I hope you all will enjoy and stay safe, stay healthy. And on behalf of organizers, thank you very much to all of you, both participants, panelists, and all the organizers. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.